will not forgive others, God will also not forgive you. इसका अर्थ है, इस आयत का अर्थ है कि यदि आप दूसरों के अपराध क्षमा ना करेंगे तो परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा ना करेगा. Like how Jesus Papa died, like how Jesus Papa forgive us for dying on the cross. जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पे दिया, हमारे पापों को क्षमा किया. I have a testimony about my bus driver. One day I went to my school, so all the children were leaving the school. My class was finished. So then my bus driver left me in the school. So एक दिन क्या हुआ, जब मैं स्कूल से छुट्टी हुई तो मेरे ड्राइवर अंकल सब बच्चे चले गए और मुझे स्कूल में भूल गए. So my principal saw me in the school, my principal asked me, what is your father number? So I said my father's number. So then I called my dad. So I said to my dad, pick me up from the school to my home. So my father said to me, your mother will take you home. एक दिन जब मैं स्कूल में रह गई तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे बात की, मेरे फादर का नंबर लिया और उन्होंने बात कराई और मेरे पापा ने मम्मा को लेने के लिए भेजा. So my father was very upset with my bus drivers. My bus driver said, I forgot that. So my father forgive my bus driver. Like this, we should always forgive others. मेरे पिताजी ड्राइवर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन ड्राइवर ने जब अपनी गलती मानी तो मेरे पापा ने उन्हें क्षमा कर दिया. ऐसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए. Can somebody read Colossians chapter 3 verse 13 for me? क्या कोई कुलुसियो उसका 13 Colossians 3 chapter 3 and verse 13 यहाँ लिखा है, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Here also it's written the same. The meaning of this verse is that if you will not forgive others, God will not forgive you. That's why you must forgive others. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा ना करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा ना करेगा. Can somebody read Matthew chapter 6 verse 12? मत्ती 6 अध्याय और उसका 12 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इस तरह से लिखा है. मत्ती 6 अध्याय उसका 12 पद. And forgive us our debts as we forgive our debtors. In this words, we have the meaning that as we forgive our debts, we also forgive our debtors. इसका अर्थ है कि जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं, जिस तरह से प्रभु हमारे कर्जों को क्षमा करता है, प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करे, वैसे ही हमें भी दूसरों के अपराधों को या दूसरों के कर्जे को क्षमा करना है. In the Bible, there is a parable. That parable name is the prodigal son. There was a man. There was a man, and that man had two sons. One was the elder son, and one was a younger. The younger son said to his father, "Give me my money." एक दृष्टांत भी इसके विषय में हमें बताता है कि एक पिता था और उसके दो पुत्र थे, और एक बड़ा और एक छोटा पुत्र. And
So the younger son father gave his money. So then the younger son went into his village and looked. He wasted his money instead of doing something with his money. He wasted it, and at last he didn't. His money was finished. So he saw a farm. He fed the piggies. So, but he was so hungry that he ate the piggies' food. और उसने अपने पिता से, छोटे बेटे ने अपने पिता से पैसा मांगा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, और अपना हिस्सा लेकर एक दूर देश में गया, जहाँ पे उसने अपने पैसे को खर्च कर दिया, व्यर्थ में उड़ा दिया। और जब उसके पास कुछ ना बचा तो एक व्यक्ति के यहाँ पर जाकर सूअर चराने का काम करने लगा। So after some time, the prodigal son thought that I must go to my father and say sorry to him, for I have sinned before God and my father. तो जब वो सूअरों का भोजन खाने लगा और जब मैं अपने आपे में आया, तो उसने सोचा कि मैं अपने पिता से जाकर क्षमा मांगूंगा, उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा करें। So then the prodigal son thought one more thing. He thought that I will tell my father that I must be his servant. तो उड़ाऊ पुत्र ने सोचा कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि क्यों ना मुझे एक नौकर की तरह ही अपने यहाँ पर रख ले। So when the prodigal son father was standing near a door, and then the prodigal son came poor. His clothes were torn, and he was unable to walk. So the prodigal son father was very upset. He came on the road and hugged his son. जब पिता ने, जो कि द्वार पर खड़ा हुआ अपने बेटे की राह देख रहा था, उसने अपने बेटे को देखा कि वह फटे कपड़ों में आ रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, तो बहुत उदास हुआ। वह दौड़ा और उसने अपने पुत्र को गले लगाया। So then the prodigal son said, "Sorry, father, I have sinned against God and you. Can you please take me like a servant?" तो जब पुत्र ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा करें और एक सेवक के समान रख लें। But the prodigal son father said, "No, you must not be my servant, but we must have a party." So then they began to have a party. The elder son got angry on the younger son. और पिता ने कहा, नहीं, तुझे सेवक नहीं बनने की आवश्यकता है। और उसने कहा कि हमें एक उत्सव करना है। उन्होंने वहाँ पर एक उत्सव मनाया, लेकिन बड़ा पुत्र इस बात पर क्रोधित हुआ। But in this parable, the meaning of this parable is that we should forgive others. The prodigal son he took all his money from his father and wasted his money. No, but we should not waste our money. But उड़ाऊ पुत्र ने जैसे अपना धन उड़ा दिया, ऐसे हमें अपने धन को उड़ाना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। like how the prodigal son was coming back, his father forgave him. He did a very big mistake, but his father forgave him. उड़ाऊ पुत्र ने जब वह वापस आया तो उसके पिता ने उसको क्षमा कर दिया, यद्यपि उसने बहुत बड़ी गलती की, अपराध किया, लेकिन फिर भी क्षमा किया गया। But so in this story we learn to forgive others. तो इस कहानी में हम सीखते हैं कि हमें क्षमा करना है। We should always forgive others like God. Our parents also forgive us like God, because they are our parents, like our parents, and like God we should forgive also others. और जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, जैसे हमारे माता पिता हमें क्षमा करते हैं, ऐसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए।
If other people tell us to forgive others if they didn't do mistake, or if they did mistake, if other people say to forgive others, so we should also forgive them. और जब दूसरे हमें क्षमा करने के लिए प्रेरित करते हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। In the Bible there is a parable. That parable name is the king forgives his servant. बाइबल में एक दृष्टांत है जो एक राजा के विषय में है जिसने अपने सेवक को क्षमा किया। One day the king said to his servant, "Can you give me 10,000 talents?" So then the servant said, "No, I will take time. After some time I will give you." But then the servant went to his fellow servant and asked 100 denarii. एक राजा था जिसने अपने देनदारों से उधार वापस मांगा, जिसमें से एक सेवक के पास 10,000 तोड़े थे। उसने उससे कहा कि मुझे अपना कर्जा वापस चाहिए, तो उसने मोहलत मांगी और उससे विनती की कि मुझे कुछ समय दिया जाए, मैं चुका दूंगा। But when the servant said to his fellow servant for asking 100 denarii, so then the fellow servant didn't also have money. But the servant said to his fellow servant, "No, you have to give your money now." पर वही सेवक जब बाहर गया तो उसने अपने एक सहकर्मी को पकड़ा और उससे, जिसके पास उसके 100 रुपए 100 दिनार धरता था, उससे जबरन वसूलना चाहा। So, but the other people from outside looking, the servant and the fellow servant, they were so angry. They complained the king about that thing. So then when the servant and the fellow servant came to the king said, "You naughty servant." तो जब अन्य लोगों ने ये देखा तो उन्होंने उसकी शिकायत राजा से करी कि इसने दूसरे व्यक्ति को क्षमा ना किया है। You should like how I forgive you, you should not forgive your fellow servant. राजा ने कहा कि जिस प्रकार से मैंने तुझे क्षमा किया, क्या तुझे दूसरे को क्षमा करना ना चाहिए था? So then instead of putting the servant's fellow servant in jail, the king put his servant into jail. Like this we should forgive others. Like the king, he forgave his servant, we should also forgive others. और राजा ने उस दुष्ट दास को जेल में डाल दिया। इसी प्रकार से जैसे राजा ने क्षमा किया, हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। Whatever our parents say like to forgive, we should listen to them. और जब हमारे माता पिता हमें क्षमा करने के लिए किसी को कहते हैं तो हमें क्षमा करना चाहिए। If we forgive, so God will also forgive us. जब हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। Whatever God says, we should do that. जो कुछ परमेश्वर कहता है वह हमें करना चाहिए। Sometimes I do mistake, but my father or mother forgives me. कई बार मैं गलती करती हूँ लेकिन मेरे माता पिता मुझे क्षमा करते हैं। I have a testimony about my school friend. I had a school friend. Her name was Ridhima. मेरी एक गवाही है अपने स्कूल के बारे में। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रिधिमा है। I was saying about my God. So then she felt bad and she slapped me, but I didn't slap her. I forgive her. मैं अपनी दोस्त को परमेश्वर के बारे में बता रही थी लेकिन उसको बुरा लगा और उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसे क्षमा किया। Like this we should forgive others. इसी प्रकार से हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। I have one more testimony about my little brother. My little brother name is Joshua. मेरी एक और गवाही है मेरे छोटे भाई के बारे में जिसका नाम जोशुआ है। When I was little baby and my small brother Joshua was little baby, we used to play. So, but my
brother Joshua, he used to scratch on my face, but now he doesn't scratch. But when he scratched on my face when I was a little baby, I didn't used to do anything. I forgive him. जब मेरा भाई छोटा था तब वह हम खेलते थे और जब वह छोटा था तो वो कई बार मुझे नोच लेता था। पर मैं उसको सज़ा नहीं देती थी, मैं उसको कुछ नहीं कहती थी, मैं उसको क्षमा करती थी। Like one day my dad was taking my little brother Joshua in his godi, so my little brother Joshua pinched my dad, so uh, my dad felt pain, but my dad forgave my little brother Joshua. मेरे छोटे भाई को जब मेरे फादर मेरे पिता गोद में ले रहे थे तो उसने उन्हें भी नोचा, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा किया। Like this we should always forgive others like God. ऐसे ही हमें दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए जैसे परमेश्वर क्षमा करता है। Done. प्रभु का धन्यवाद देते हैं जोआना के लिए। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जोआना प्रभु के वचन को बोल पाई, बता पाई। उसे कल से फीवर हो रहा है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी वो प्रभु के वचन को पढ़ रहे, उसे वचन तैयार कर रहे, बार बार अपने नोटबुक को लेते, बाइबल को खोलते, फिर लिखते, फिर थोड़ा थक जाते, फिर लेट जाते, फिर सो जाते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते। प्रभु हमारी मदद करते हैं। जैसे जोआना बता रही थी बेटा कि हमें एक दूसरे को क्या क्षमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन भी ऐसे ही बताता है कि यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। प्रभु का वचन बताता है कि हमें क्या 7 के 70 गुना हमें क्षमा करना है, उसकी कोई गिनती नहीं है बेटा। लगता है हमारे जीवन, अरे मैं बार बार ये ऐसे करता रहता है, मैं कितनी बार इसे क्षमा करूं, ऐसे लगता है ना, ये तो बार बार मेरे साथ ऐसे झूठ बोलती है, बार बार मेरे साथ धोखा करती है, मैं तो अब इसे क्षमा नहीं करूंगी। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि हमें बार बार दूसरों को क्षमा करना है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे मैं तो इसके साथ भलाई कर रहा हूँ, मैं तो इसके साथ भलाई कर रही हूँ, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ बुराई करती है, ये हमेशा मेरे साथ बुराई करता है। ऐसे मन में, हमारे दिमाग में सोच और विचार आते हैं। लेकिन प्रभु, हमारा आधार क्या है बेटा? प्रभु का वचन है। जो प्रभु हमें बोलते हैं हमें तो वही करना है। तो प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो हमें क्षमा करना है। हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग में दिखता है ना, हम क्या कर रहे हैं, तो वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आने वाले समय में प्रभु आपको और मुझे उसका प्रतिफल देंगे, उसका रिवॉर्ड देंगे। तो हम इन बातों को, वचनों को याद रखें और जैसा प्रभु कहते हैं वैसा हम हमारे जीवन में करें तो हम प्रभु से आशीष को पाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना में लुविस आंटी नहीं आ पाई है, तो हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अंतिम प्रार्थना में कौन अगुवाई करेगा? मैं देखती हूँ किससे मौका दे। ग्लोरिया सिस्टर, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। प्रार्थना कीजिए सुने गए वचन के लिए कि जो कुछ